देखिए यहाँ पर न्यूरोलॉजी पर कॉन्फ्रेंस चल रही है दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो अभी जो हमें आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। और नमस्कार विपिन जी, 1 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा भी बताया था लर्निंग नेवर एंड्स। जो बच्चे हैं, जो भी हम समाज है, कि जो सीखना होता है कभी ख़त्म नहीं होता, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये कॉन्फ्रेंस के बताइए न्यूरोलॉजी पे। ये जो कॉन्फ्रेंस है न्यूरोफिजियोलॉजी की, ये दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। 24 से 26 तारीख तक है। और ये इसका बहुत ही महत्व है क्योंकि बाहर से लोग, इंडिया से नहीं बाहर से भी आए हैं। एक बहुत ही बड़े डॉक्टर सिंगापुर से आए हैं और एक शायद यूके से आए हैं, मुझे ध्यान में नहीं है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस का यही बेनिफिट होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाएं तो सीखने को इतना कुछ मिलता है। एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो पता नहीं कितना कुछ मिलेगा। और कुछ लोग तो दूसरे मुल्कों से आए, तो ये नॉलेज है, ये तो है ही एंडलेस। मैं तो समझता हूँ कि जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उस दिन काम ख़त्म हो गया। जैसे कहते हैं ना कि अ मदर इज़ बॉर्न द डे अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, सो सिमिलरली अ टीचर इज़ बॉर्न व्हेन अ स्टूडेंट इज़ बॉर्न। जिस दिन टीचर सीखना बंद कर देगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो नॉलेज है, इसका तो अंत कोई नहीं है। तो सबसे जो, जैसे वो डॉक्टर चौधरी ने कहा कि हु आई एम, तो इफ़ आई नो हु एम आई, तो सारी दुनिया पता चल सकती है। अपने अंदर तो घुस के देखते हैं, बाहर इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? Do you want to say something? Yeah, this is a good effort by the neurology department, and I think this should continue forever. Thank you, thank you. हाँ जी। Sneezy, only 1 minute, only 1 minute. ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ किस चीज़ बारे? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਰਗੇ ਦੌਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅਗਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 100 ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, 100 ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਪੀਪਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰੀਟੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। 70% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੋਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 4.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮੈਸੇਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੇ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 20-30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ 4.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3-4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6-8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। और देखें, हाँ, हेलो।
और सर ओनली 1 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया अभी स्ट्रेस के बारे, डिप्रेशन के बारे, पैरालाइज के बारे। तो अभी देखिए ना, मेडिसिन बहुत जो कॉस्टली है, कि मतलब टीका 20,000 का, 20,000 का, 25,000 के बड़े महंगे आते हैं जी। तो हमारे यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल हैं, जितने लैब लूब हैं, तो इसके बारे थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है सब जो। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो इंक्रीजिंगली प्रिसिशन के ऊपर जाता है, कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट को बताता है। और एग्जैक्ट डायग्नोसिस और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं, और काफ़ी समय जो नए ड्रग्स आते हैं, नए इंजेक्शंस आते हैं, वो कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक आउट करना चाहिए, एंड वी हैव टू एनकरेज अ सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, जो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए, जैसे सीटी स्कैन हो गया, वो एक मिनिमम है। एमआरआई ना भी हो, सीटी स्कैन से भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, तो एक अच्छा सीटी स्कैनर हो। इसी तरह बहुत सारे लाइफ सेविंग मेडिकल ड्रग्स हैं न्यूरोलॉजी के लिए, जैसे एक है IVIG, ठीक है, वो भी जनरली एक पेरिफेरल लेवल में PHC से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड एकेडमिक सेंटर्स में सब जगह अवेलेबल होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी जगह कर भी रही है। स्ट्रोक जैसे है, स्ट्रोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक जो स्ट्रोक में खून का कतरा जम जाता है दिमाग में, तो उसको पिघलाने के लिए एक दवाई लगती है, तो वो कॉस्टली है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री दे रही है। तो इसलिए सरकार काफ़ी सारे योजना ले रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। और हमें सबको ये देखना है कि कैसे विद इन अ रीजनेबल कॉस्ट हम ये मेडिकल केयर, जो एक्सेलेंट मेडिकल केयर है और अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर है, हम ये जनता को पहुंचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक मिनट, वो तो आप खड़े हुए, तो बात तो ऐसी है कि टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्निक जो होती है, जितनी भी मशीनरी वगैरह आई है, वो भी बड़ी अहम होती है, क्योंकि जब तक हम पता नहीं चलेगा कौन सी बीमारी है। डॉक्टर साहब ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जैसे हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमें कई बार डायग्नोसिस में डाउट होता है भी नंबर 1 डायग्नोसिस है, नंबर 2 है कि नंबर 3 है। तो ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है उस डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए। कई बार वो इतना कंफर्म हो जाता है कि ट्रीटमेंट भी चेंज हो सकता है और मरीज़ ठीक भी हो सकता है। कई बार कोई चोट लग गई, उसकी नस कट गई है, या कोई बीमारी इन्फेक्शन हो गया जिसमें नसें ख़राब हो गई हैं, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, अगर ये ब्रेन के बाहर की नसें ख़राब होती हैं तो इस टेस्ट से हमें पता चल सकता है। डॉक्टर साहब सुपीरियस यानी कि नकली दवाइयाँ बहुत आ रही हैं, तो इसके बारे में आप कहेंगे बड़ी कंपनी के बंदा ले लेते हैं, अब हमारे तो बेईमानी तो जाती नहीं इंडियन लोगों के, इसके लिए क्या कहोगे? आपको तो दवाई लिख दिया, बाहर से खरीद लिया, तो ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈਦਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪਲੇਨ ਟੂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਆਈ